Good morning, class. Welcome to this lecture of IMC. We are discussing in the last lecture about the depreciation. We have already seen what do you mean by the depreciation and how depreciation is done, what are its benefits और depreciation क्या होता है ये हमने already देखा हुआ था. What is basically depreciation? मतलब उसमें जो होता है कि accounting method for allocating the cost. मतलब हम किसी भी चीज़ को परचेस किए तो उसकी जो कॉस्ट है हम उसका जो यूज़फुल लाइफ है उतनी ईयर्स तक उसको अलोकेट करें. एंड व्हाट आर द कॉजेज फॉर डिप्रिसिएशंस, वीयर टीयर, डिस्ट्रक्शन, डिके, ऑब्सोलेसेंस, इन्फ्लेक्शन एटसेट्रा. Then some causes which we can control, those are internal causes, and some causes which are out of our control, that is beyond our control, that are external causes. And then we have seen what are the objectives, why we need to go for depreciation, ये हमें क्यों करना है depreciations. So we already know why we go for depreciation, because we have to understand the balance sheet, we have to calculate the profit, then we have to reduce the taxes, then we must know the position of each and every asset, and we want the business to run properly, and we have to distribute it in right way. And so all these things we have already seen. And what are the factors, तो ये सब हम ऑलरेडी देख चुके थे इन द लास्ट लेक्चर. एंड व्हाट इज डेप्रिसिएशन, व्हाट इज डिप्लीशन, एंड व्हाट इज एमोरिटाइजेशन. एमोरिटाइजेशन मतलब क्या, डेप्रिसिएशन मतलब क्या, और डिप्रिसिएशन और डिप्लेशन मतलब क्या. वी हैव ऑलरेडी सीन ऑल दिस थिंग्स. दैट इज जो डेप्रिसिएशन होगा वो किसी इक्विपमेंट का हो गया, डिप्लीशन मतलब वो खत्म हो जाना वहाँ का पार्ट, और एमोरिटाइजेशन मतलब वो एक्सचेंज जैसा हो जाना. और फिर यहाँ पे एग्जांपल्स भी हमने देखे थे. इंटेंजिबल शीट्स दे गेट अमोर्टाइज्ड, देन मिनरल फील्ड्स, ऑयल फील्ड्स, कोल फील्ड्स, गोल्ड फील्ड्स दे गेट डेप्लीटेड, एंड द इक्विपमेंट्स और मशीन दे गेट डेप्रिशिएटेड. So this is all what we have seen. So we understand what is depreciation, what are the causes of depreciation, and what causes which we can avoid, and what is the objective of depreciation, and what are the factors which affects the depreciation. So this is all what we have seen. Now what is the significance of depreciation? So basically what is the significance, मतलब इसका फायदा क्या है, ये एक्चुअली क्यों है depreciation. So it allows for companies to recover the cost of an asset when it is purchased. It allows the company to recover the cost of an object. To recover the cost of an object मतलब हमने कोई भी चीज़ करी तो उसकी कॉस्ट रिकवर होनी चाहिए. तो इट अलाउज द कंपनीज टू रिकवर द कॉस्ट ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. Or else if we try to recover that cost only for that period, then you will go into a major loss. Your company will not be able to recover the price. तो हमको बताना पड़ेगा कि it is okay whether though we are purchasing it at a higher price rate, with the passage of time, after a particular period of time उसकी जो cost है वो वहाँ पर justify हो जाएगी. So that is how the companies recover the cost of an asset. Second, it allows the cover total cost of an asset over its lifetime instead of immediately recovering the purchase cost. इमीडिएटली परचेस कॉस्ट को रिकवर करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज इफ यू गो फॉर दैट थिंग, इफ यू इमीडिएटली वांट टू रिकवर द परचेस कॉस्ट, देन इट विल नॉट बी पॉसिबल एट ऑल टाइम्स. योर बिजनेस विल रन इन लॉस. एंड अगेन हमने ये भी देखा था कि अगर बिजनेस लॉस में है तो चीज़ हमारी है, हम चाहे प्रॉफिट में बताए चाहे लॉस में बताए, बट दैट अफेक्ट्स द इंटायर मार्केट, दैट अफेक्ट्स द इन्वेस्टर्स, दैट अफेक्ट द शेयर होल्डर्स, एंड दैट अफेक्ट्स द गुडविल ऑफ द कंपनी एंड सो मैनी थिंग्स. सो दैट इज वाई यू कैनॉट डायरेक्टली इमीडिएटली रिकवर इट. बट द पीपल विल से कि नहीं, आपने तो अभी परचेस किया था दैट पर्टिकुलर हेवी इक्विपमेंट, तो आप उसकी कॉस्ट कैसे जस्टिफाई करोगे. वो कॉस्ट के हिसाब से तो आपको लॉस होना चाहिए, आपकी लायबिलिटी ज़्यादा है. तो देन यू हैव टू एक्सप्लेन देम कि इट इज़ नॉट लाइक दैट. वी आर कंसिडरिंग द डेप्रिसिएशन and we are considering the cost of that particular thing over a particular time on a particular lifespan of that particular equipment. तो वो इस equipment के लाइफ स्पैन तक, पूरे उसके टाइम तक हम उसकी कॉस्ट को कंसिडर करेंगे. सो हेंस इट विल बी कवर्ड, रिकवर्ड एंड विल बी जस्टिफाइड. इट अलाउज कंपनीज टू रिप्लेस फ्यूचर असेट्स यूजिंग द एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ रेवेन्यू. फ्यूचर एसेट्स को रिप्लेस करना है. जैसे मुझे एक मशीन पुरानी हो गई तो फिर हम उसको बेच के, तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था कि हम 5 साल बाद जब इसको बेचेंगे तो हमसे इतना पैसा मिलेगा, तो उसकी जगह पे फिर हम ये खरीदेंगे. या फिर हमको पता है कि ये 10 साल बाद ये मशीन खराब होगी तो हमको इसको बेचना ही पड़ेगा, या फिर वी हैव टू गो फॉर सम अदर ऑप्शन. सो दैट इज व्हाट यू कैन डू. सो दीज आर द सम सिग्निफिकेंस ऑफ डेप्रिसिएशन. नाउ हाउ डू यू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन. नाउ वी हैव अंडरस्टूड. एक चीज़ तो हमारी समझ में आ गई कि चाहे कुछ भी हो, डेप्रिसिएशन ये बहुत अच्छी बात है, इसमें बहुत फ़ायदा है, इसमें हमारा टैक्स बचता है, इसमें हमको प्रॉफिट प्रॉपरली होता, बैलेंस शीट सही रहती, बिजनेस सही से रहता, तो इसके काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं. सो डेप्रिसिएशन इज यूजफुल, इट हैज़ सो मैनी सिग्निफिकेंस. नाउ व्हाट आर द मेथड्स टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन. सो वी हैव 3 मेथड्स: स्ट्रेट लाइन मेथड, यूनिट प्रोडक्शन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड, एंड डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड. या उसको कभी डिक्लाइनिंग भी बोलते या डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड भी बोलते.
तो these are the three methods by which we calculate the depreciation. तो we directly go for a problem wherein we are going to solve one problems कुछ भी नहीं है, simple एक दो छोटे छोटे formulas है and then you get the values. So before that you must know certain terms. So what are it? Useful life मतलब जब तक वो चलेगा, जैसे सपोज एक आपने कुछ मोबाइल खरीदा तो 2-3 साल तक उसमें कुछ भी प्रॉब्लम ही नहीं आना है. हाँ, आप उसको तोड़ोगे, फोड़ोगे, एक्सीडेंट कर दोगे उसको जला दोगे, फेंक दोगे, डेली उसको खोल खाल के रीअसेंबल करोगे तो हो सकता है इशू आए. लेकिन वैसे अगर नॉर्मल एवरेज कंडीशंस में आप देखो, आप उसको मेंटेन कर रहे हो प्रॉपरली, तो इट्स एवरेज लाइफ इज सपोज 4 years. सो दैट इज व्हाट यूजफुल लाइफ. इट इज द टाइम पीरियड ओवर विच द ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर्स द फिक्स्ड एसेट टू बी प्रोडक्टिव. मतलब वो टाइम तक वो परफेक्टली काम कर रहा है. आफ्टर दैट टाइम वो काम करना बंद कर दे. जैसे 4 साल हो जाएंगे तो उसमें धीरे धीरे फिर इश्यूज शुरू हो जाएंगे. तो ऐसे हर प्रोडक्ट का, हर इक्विपमेंट का, हर एसेट का एक कुछ तो भी एक टाइम रहता, लाइफ स्पैन till which it is productive. It gives you the exact result what you require. So that is what is called as useful life. Now second is salvage value or residual value. अगर सपोज 10 साल तक अच्छा चलता और 10 साल के बाद अब उसका काम फंक्शनिंग खराब होते जा रहा, तो व्हाट यू डू, यू सेल इट. आप उसको सेल कर सकते हो कि वो कुछ ना कुछ तो पैसे उससे मिलेंगे, कि पूरा ही वो खराब नहीं होगा. हाँ, उसका एक्चुअल फंक्शनैलिटी वो नहीं कर रहा है, बट देयर माइट बी सम पार्ट्स, कुछ पार्ट्स होंगे जो आपके लिए यूजफुल होगी, जो आपके लिए हेल्पफुल होगी. सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन सेल इट. तो तब आपको जो वैल्यू मिलेंगे दैट इज कॉल्ड एज सॉल्वेज वैल्यू और रेसिडुअल वैल्यू. सॉल्वेज और रेसिडुअल वैल्यू. Then the cost of the asset includes taxes, shipping, preparation, setup expenses. It includes everything. When you talk about the asset, the cost of the asset, it includes everything. That is the taxes, the shipping, the preparation, setup expenses, and so on. So these are few terms, that is useful life, salvage value or residual value, then the cost of the asset and so on. उसके बाद में बुक वैल्यू कैन बी थॉट एज द नेट एसेट वैल्यू ऑफ अ कंपनी कैलकुलेटेड एज टोटल एसेट्स माइनस इंटेंजिबल एसेट्स. अ बुक वैल्यू इज इक्वल टू इट्स कैरिंग वैल्यू ऑन द बैलेंस शीट एंड कंपनी इज कैलकुलेटेड नेटिंग द एसेट अगेंस्ट इट एप्रिशिएटेड डिप्रिसिएशन. एंड एसेट्स बुक वैल्यू इज इक्वल टू इट्स कैरिंग वैल्यू ऑन द बैलेंस शीट. अब बुक वैल्यू मतलब क्या? अब बुक वैल्यू जैसे सपोज हमने 10,000 का एक इक्विपमेंट खरीदा है, 1 साल के बाद में 15% से उसका डिप्रिसिएशन हुआ. तो सपोज 1 साल के बाद में सपोज हमने 1 लाख का इक्विपमेंट खरीदा और 1 साल के बाद में हमने 15% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया कि उसकी वैल्यू होगी 1 साल के बाद में 85,000. तो वो जो 85,000 दैट इज द बुक वैल्यू. दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर एसेट एट अ पर्टिकुलर टाइम when we calculate the depreciation. जब हम depreciation की बात करते हैं then the value of that particular asset on that particular time that is called as book value. यानी जो कल 1 लाख का था वो आज सपोज 85,000 हो गया. 1 साल बाद अब और देखो तो 85,000 का 15% कुछ तो भी डेप्रिसिएशन होगा, तो देन देयर में भी 10-11,000 फिर से उसकी प्राइस कम होगी, तो वो हो जाएंगी उस दिन की उसकी बुक वैल्यू. नेट वैल्यू जो है, book value can also be thought of as the net asset value of a company calculated as total assets minus intangible assets, that is patents, goodwill and liabilities. Now this is another definition. Here you can see ये book value तो हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलर asset की. अब उसके बाद में यहाँ पे क्या कहता है, total assets minus intangible assets. बुक वैल्यू कैन ऑल्सो बी थॉट एज द नेट एसेट वैल्यू ऑफ अ कंपनी. तो अब आपने इसमें टोटल एसेट्स निकाले और माइनस इनटेंजिबल एसेट्स निकाले, क्योंकि इनटेंजिबल एसेट्स दैट इज पेटेंट्स, गुडविल्स एंड लाइबिलिटीज. तो इसके हिसाब से जो आपको मिले बुक वैल्यू. अब ये जो बुक वैल्यू दिस इज नॉट फॉर अ पर्टिकुलर एसेट, दिस इज फॉर एन एंटायर इंडस्ट्री. वो पूरी इंडस्ट्री की बुक वैल्यू है कि उस डेट में आपके पास कितने सारे प्रोडक्ट्स थे, उनकी वैल्यूज कितनी थी, उसमें से आपने माइनस किए इनटेंजिबल एसेट्स, गुडविल एंड पेटेंट्स एंड एटसेट्रा. अब आपने फिर ये इनटेंजिबल एसेट्स माइनस क्यों किए? क्योंकि आपको डायरेक्टली उस दिन उसको बेच के तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे. जैसे आपका गुडविल बहुत बढ़िया है तो आपको मार्केट में जो आपकी चीज़ 20 रुपये की वो 30 रुपये में कोई नहीं खरीदेगा. हाँ, आपका गुडविल बहुत अच्छा है तो आपको 2 की जगह 3 ऑर्डर्स मिलेंगे, बट इट विल नॉट बी द केस. समझ रहे हो ना? ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कि सपोज हमको, जैसे हमने किसी से एक गाड़ी करी है और हमने उसका कुछ फेयर तय किया, तो उसने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया था, हम उसको 100 रुपये बख्शीश देंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको 5,000 के 6,000 देंगे. तो जो इंटेंजिबल एसेट है उसकी लिक्विड में कुछ वैल्यू मिलना है कि नहीं मिलना है. तो जैसे हम बात करेंगे कि अगर आपको बिजनेस पूरा लिक्विड करना ही उसी दिन, तो जो बुक वैल्यू रहेंगे मतलब जितने उस दिन आपके पास एसेट्स अवेलेबल है उनकी वैल्यू, फिर उसमें से आपने माइनस किया कि आपके इंटेंजिबल एसेट्स कौन से हैं, तो ये वैल्यू को भी हम लोग बोलते हैं बुक वैल्यू. और अदर देन उसमें से फिर लाइबिलिटीज़ कौन सी है, कि वो मशीन से रिलेटेड, वो एसेट्स रिलेटेड लाइबिलिटीज़ कौन सी थी, कि उसको कलर करना था, ये करना था, वो करना था, पॉलिश करना था, फिनिश करना था, रिपेयर करना था, मेंटेन करना था, अपडेट करना था, वॉट एवर इट इज़.
लेकिन वो पर्टिकुलर डेट को कंपनी के सारे एसेट्स की जो वैल्यू रहेंगी दैट इज कॉल्ड एज बुक वैल्यू. सो नाउ वी अंडरस्टैंड बुक वैल्यू मीन्स द वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर इक्विपमेंट असेट और ऑल द असेट्स ऑफ अ कंपनी ऑन अ पर्टिकुलर टाइम फॉर अ पर्टिकुलर टाइम. एक स्पेसिफिक डेट के दिन उसकी वैल्यू क्या रहेंगी दैट इज कॉल्ड एज बुक वैल्यू. Now we'll go for this method, that is straight line depreciation method. This is the simplest method of all. It involves simple allocation of an even rate of depreciation every year over the useful life of the asset. The formula for straight line depreciation is annual depreciation expense is equal to asset cost minus residual value upon useful life of the asset. वेरी सिंपल मेथड. जैसे सपोज हमने एक चीज खरीदी वो 1 लाख रुपए की है और हम क्या बोल रहे हैं कि हम उसका एनुअल डेप्रिसिएशन ले रहे हैं 10%. एनुअल डेप्रिसिएशन 10% और उसका यूजफुल लाइफ लिया समझो हमने 5 ईयर्स. यूजफुल लाइफ लिया 5 ईयर्स और हमने क्या बोला कि 5 साल में आप इसको बेचोगे तो आपको इसके 20,000 मिल जाएंगे. 5 साल बाद आपको कितने मिल जाएंगे इसके 20,000. तो 1 लाख की सपोज आपने एक मशीनरी खरीदी, आप उसको जब 5 साल के बाद उसका लाइफ खत्म हो जाएगा तब आप सेल करोगे तो आपको मिलने वाले 20,000. तो मतलब आपको एक्चुअल कितना पड़ा हो 80,000 में, तो 80,000 उसकी वैल्यू होगी और वो 80,000 आपको 5 साल तक चलने वाली है. तो हर साल कितना डेप्रिसिएशन होंगे 80,000 डिवाइडेड बाय 5. वेरी सिंपल. तो वो हिसाब से कैलकुलेशंस आएंगे. लेट अस गो फॉर अ प्रॉब्लम. सपोज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी परचेसेस अ मशीन ऑफ ₹1 लाख. 1 लाख की मशीन खरीदी एंड यूजफुल लाइफ इज 10 ईयर्स. रेसिड्यू वैल्यू इज 20,000. 1 लाख की ली है, 10 लाख का उसका 10 साल का उसका लाइफ है और उसकी रेसिडियल वैल्यू या फिर साल्वेज वैल्यू है 20,000. तो हमने क्या किया उसका एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैसे निकाला हमने उसका कि पहले तो हमने किया 1 लाख माइनस 20,000 तो वो आगे सीधे 80,000. 1 लाख माइनस 20,000 दैट इक्वल्स टू 80,000. क्योंकि आज हमने 1 लाख की खरीदी लेकिन 10 साल के बाद भी आप उसको बेचेंगे तो यू आर गोइंग टू गेट 20,000. तो उसकी एक्चुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना बढ़ रहा है 20,000. तो 1 लाख में से हमने 20,000 माइनस किया तो 80,000 की टोटल हमको मशीन पड़ी. अब वो 80,000 हमको 10 साल में देना है. हमने क्या बोला था कि वो 80,000 हमको 10 साल में रिकवर करना है. तो 1 साल में कितना रिकवर करना है हमको सिर्फ 8,000. कितना रिकवर करना है ओनली 8,000. मतलब यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एक स्पेसिफिक डेप्रिसिएशन अमाउंट ले लिया. कितना कि भैया 1 लाख की अगर मशीन है 10 साल बाद बेचोगे तो 20,000 मिलेंगे. तो मतलब हमको 80,000 की वो मशीन पड़ती है और वो 80,000 हमको 10 साल में उसको बैलेंस करना है, उसको राइट ऑफ करना है, उसको वैल्यू एडजस्ट करना है. मतलब वो 80,000 की मशीन ऐसा दिखाना है कि 10 साल हमने यूज़ किया तो हर साल हमको कितना खर्चा लगा. तो 80 डिवाइडेड बाय 10 दैट कम्स आउट टू बी 8,000. मतलब हर ईयर हमको वो पर्टिकुलर मशीन के लिए कितना लग रहा खर्चा दैट इज 8,000. कितना लगेगा दैट इज 8,000. सो वेरी सिंपल. अब ये सबसे सिंपल है लेकिन जनरली क्या होता है डेप्रिसिएशन जैसे अगर हम एक फिक्स रेट से कैलकुलेट कर रहे हैं कि ठीक है कि 1 साल बाद जैसे 80,000 की वो मशीन पड़ी तो 1 साल बाद उसकी वैल्यू 8,000 से कम हो गई तो फिर बची 72,000. उसके बाद फिर 8,000 से कम हुई. मतलब हमने 10% एक कांस्टेंट फैक्टर ले लिया. लेकिन डेप्रिसिएशन ऐसा नहीं होता, इट वेरीज. वो कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड भी करता लेकिन ये सबसे सिंपल मेथड है. तो इससे आप नियर अबाउट डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो. दैट इज द मोस्ट सिंपलेस्ट मेथड. स्ट्रेट लाइन डिप्रिशिएशन सिंपल एक स्ट्रेट लाइन बनेगी 10% हर साल कम करते चले जाओ. Thus the company can take ₹8,000 as the depreciation expense every year over the next 10 years as shown in depreciation table below. तो आप कंपनी के बताएंगे हर बार कि भैया आप ये मत देखो कि हमारी 1 लाख की मशीन ली तो 1 लाख में लायबिलिटी है. नहीं हम पे इस साल सिर्फ 8,000 रुपये की लायबिलिटी है. तो लायबिलिटी सिर्फ 8,000 की है तो मतलब हमारा जो बैलेंस शीट रहेगी वो उसमें लायबिलिटी 8,000 ही पकड़ी जाएंगी क्योंकि उतना ही डेप्रिसिएशन है. उसके अलावा हमको कुछ डेप्रिसिएशन लग रहा है कि नहीं, सिर्फ 8,000 रुपये खर्चा लगा और वो मशीन की यूज़ से आपको 8,000 का या उससे ज़्यादा का इनकम आता है तो आपका प्रॉफिट है. या 8,000 का भी आता है दैट मीन्स इट्स कॉस्ट इज जस्टिफाइड, इट्स वैल्यू इज जस्टिफाइड फॉर दैट ईयर. ऐसा आपको 10 साल तक करते जाना है. नाउ वेरी सिंपल टेबल, इसमें कुछ भी नहीं है. हियर यू कैन सी ओरिजिनल कॉस्ट माइनस रेसिडियल वैल्यू. ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख माइनस रेसिडियल 80,000 तो उसकी पूरे 10 साल तक वैल्यू 80,000 ही पकड़ी है और उसको डेप्रिसिएशन कितना है हर साल 8,000. द मोस्ट सिंपलेस्ट मेथड. बट अब इसमें मैं इश्यूज बताता क्या होता कि आज उसकी वैल्यू 80,000 है लेकिन नेक्स्ट टाइम पे उसकी वैल्यू 80 में से 8 कम करके परसेंटेज फर्क पड़ेगा वो और कम होती चली जाएंगे. लेकिन हम क्या पकड़ के चल रहे हैं कि हमको उससे कोई लेना देना नहीं है. हमको सिंपल इंटरेस्ट किस चीज़ में यहाँ पर वी आर जस्ट इंटरेस्टेड इन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस. तो व्हेन वी कंसिडर दिस इट इज जस्टिफाइड कि हर साल 8,000 रुपये आपको डेप्रिसिएशन का लगेगा. सो हेंस इट इज जस्टिफाइड. तो यहाँ पर ये जो पार्ट है इट इज जस्टिफाइड. नाउ नेक्स्ट
यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें आप क्या कर रहे हैं कि उसने कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए तो उसके हिसाब से आप मल्टीप्लाई करें। दिस इज अ टू स्टेप प्रोसेस अनलाइक स्ट्रेट लाइन मेथड। हियर इक्वल एक्सपेंस रेट्स आर असाइन्ड टू ईच यूनिट प्रोड्यूस्ड। द असाइनमेंट मेक्स द मेथड वेरी यूजफुल in assembly for the production lines. Hence the calculation is based on output capability of the asset rather than the number of years. Again we'll see what do you mean by this कि टू स्टेप प्रोसेस है। इसमें हमने एक ही कैलकुलेशन किया था, इसमें आपको डबल कैलकुलेशंस आते हैं। एंड ये इसका सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, इट इज कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन द आउटपुट कैपेबिलिटी ऑफ द असेट। असेट की आउटपुट कैपेबिलिटी कितनी, मतलब उससे हमने कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए, इसके ऊपर वो बेस्ड है। कैलकुलेशन किस पे बेस्ड है, आउटपुट कैपेबिलिटी ऑफ द मशीन, ना कि वो कितने साल चलने वाली। हमने क्या देखा यहाँ पर कि व्हाट इज द आउटपुट कैपेबिलिटी ऑफ अ मशीन। नंबर ऑफ ईयर्स पे हम इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे। अभी हमने क्या देखा था, वो मशीन 10 साल चलेंगी, वही हिसाब से हर साल का डेप्रिसिएशन निकाला था। बट नाउ वी आर नॉट गोइंग टू डू लाइक दिस। अब हम कैसा करने वाले हैं कि उससे हमको आउटपुट कितना मिला, बेस्ड ऑन दैट आउटपुट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन। सो दिस इज द यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। नाउ विल सी अ प्रॉब्लम फॉर दिस। स्टेज 1 कैलकुलेट पर यूनिट डेप्रिसिएशन, कैलकुलेट टोटल डेप्रिसिएशन। ठीक है, फॉर्मूला देखने के पहले सीधा एक प्रॉब्लम देखते तो यू विल इजीली अंडरस्टैंड इट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एबीसी कंपनी परचेसेज अ प्रिंटिंग प्रेस टू प्रिंट फ्लैट्स। फ्लैट्स मतलब कुछ स्पेसिफिक डिजाइन हो सकता है, कुछ मेटल्स पे मटेरियल्स पे फ्लैट्स, उसको आप बोलेंगे डिश बनाओ कुछ फ्लैट्स फॉर ₹40,000 with a useful life of 1,80,000 units and a residual value of ₹4,000. It prints 4,000 फ्लैट्स। मतलब हमने क्या किए, प्रिंटिंग प्रेस खरीदी हमने कितने की, 40,000 की। एक 40,000 की हमने मशीन खरीद ली और उसकी रेसिडुअल वैल्यू कितनी है, 4,000 है। उसकी रेसिडुअल वैल्यू कितनी है, 4,000 है। उसने कितने फ्लैट्स प्रिंट किए, 4,000। यूजफुल लाइफ कितना है, 1,80,000 यूनिट्स। 1,80,000 यूनिट्स। मतलब आप क्या कर सकते हो, आपने 40,000 की एक मशीन खरीदी है, उसको जब आप बेचोगे, जब भी बेचेंगे और कब बेचेंगे, जब उससे आप 1,80,000 यूनिट्स उसका यूजफुल लाइफ है, तो 1,80,000 यूनिट्स बना के बाद उसको आप बेचो दोगे तो तब आपको कितना मिलेगा, 4,000 रुपीज़। और वो कितने फ्लैट्स प्रिंट करती, 4,000 फ्लैट्स वो प्रिंट्स करती। तो अब हम देखते हैं सबसे सिंपल डेप्रिसिएशन इज। अब यहाँ पे हम जो फॉर्मूला लगाएंगे, नाउ विल गो फॉर इट। कैलकुलेट पर यूनिट डेप्रिसिएशन। पर यूनिट डेप्रिसिएशन इज असेट कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ इन यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। दैट इज एसेट कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ पर यूनिट प्रोडक्शन। तो यूनिट प्रोडक्शन कितना कर रहे हो, 1,80,000 यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो पर यूनिट डेप्रिसिएशन कितना आ गया, दैट इज ₹0.2। रुपीज़ कितना आ गया, 0.2। फिर से हम लोग देखते हैं द फॉर्मूला, वेरी सिंपल। असेट कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ इन यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। यूजफुल लाइफ इन यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन 1,80,000। दिस इज द एसेट वैल्यू, दिस इज द रेसिडुअल वैल्यू। तो 40 लाख माइनस 4,000 डिवाइडेड बाय 1,80,000, इट कम्स आउट टू बी ₹0.2। तो पर यूनिट कितना, अगर वो मशीन सपोज आपने 1 यूनिट बनाया सिर्फ, तो आपके 0.2 रुपीज़ हो गए। अगर आप 100 यूनिट बनाएंगे तो 0.2 इंटू 100, 1000 बनाएंगे तो 0.2 इंटू 1000। सो एट आफ्टर एवरी स्टेज, मतलब वो मशीन को आपने लाया, 1,80,000 यूनिट होने के बाद में उसको बेचना है, लेकिन जितने भी आप उससे यूनिट प्रिंट करते चले जा रहे हो, उसके बाद उसका आपका वैल्यू पता चलेगा कि ठीक है, इसने समझो 10,000 अगर यूज़ की तो 10,000 इंटू 0.2, तो 10,000 का 20%, दैट इज 2,000 रुपये से उसकी वैल्यू कम होगी। तो आज की डेट में वो होगी 40,000 माइनस 4,000, 36 माइनस 2, दैट इज 34। अब सेकंड निकालते फिर टोटल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ये तो हमने पर यूनिट निकाला, टोटल कितना होगा, हमने कितने फ्लायर्स बनाए थे, हमने बनाए थे 4,000 फ्लायर्स। तो 0.2 इंटू 4,000, दैट कम्स आउट टू बी 800, दैट इज 20% ऑफ 4,000, इट कम्स आउट टू बी 800। तो 800 जो हो गई वो होगी उसकी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। मतलब हमने क्या किया, पर यूनिट कितना डेप्रिसिएशन लगता है वो निकाला, और टोटल हमने कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए, 4,000। तो हमको डेप्रिसिएशन कितना लगा, 8,000। अब हमने तो सिर्फ 4,000 मैन्युफैक्चर किए, लेकिन इसका लाइफ कितना है, ये तो 1,80,000 तक है। तो आज की डेट में हम 1,80,000 तक मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, उस पर से फ्लैट्स बना सकते हैं, लेकिन हमने अभी सिर्फ 4,000 बनाए। वो मशीन का कॉस्ट 40,000 है, जब भी उसको बेचेंगे 4,000 तो हमको मिलना ही है, तो 36,000 में वो मशीन पड़ी, और अभी हमने सिर्फ 4,000 फ्लैट्स बनाए। तो आज की डेट में हमको वो मशीन का डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है, सिर्फ 800 रुपीज़। अब आप देखो कितना बड़ा डिफरेंस है, 40,000 और 800। सो टुडेज डेट, अब वो बताएंगे कि सर हमने
प्रोडक्शन पे बेस है कि सर हमने अभी तक 4000 फ्लायर बनाए, इसलिए हम सिर्फ 800 रुपीज़ डिप्रिसिएशन की कैलकुलेट करके बैलेंस शीट में ले रहे हैं। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आपको पूरे 40,000 लेना है। अगर आप पूरे 40,000 दिखाओगे तो आपका बिजनेस लॉस में चले जाएगा, क्योंकि आपको वैल्यू कहाँ पर एडजस्ट करना है, टिल 1,80,000 यूनिट्स। और आप बोलेंगे सर जब तक इससे आप 1,80,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर नहीं हो जाते तो तब तक इसकी वैल्यू जस्टिफाई ही नहीं हो रही। तो इसलिए आज की डेट में इसका डिप्रिसिएशन है सिर्फ 800। वंस द पर यूनिट इज फाउंड इट कैन बी अप्लाइड टू फ्यूचर आउटपुट रन्स। और अब आपने एक बार पर यूनिट निकाल लिया तो आप फिर बाकी सब तरफ वो अप्लाई कर सकते हो कि ठीक है, आगे आपको पता चला कि आपने 10,000 मैन्युफैक्चर कर लिए तो 10,000 इंटू 0.2, फिर आपने 1,00,000 मैन्युफैक्चर कर लिए तो 1,00,000 इंटू 0.2 50,000 तो 50,000 एंड लाइकवाइज। तो इस तरह से फिर जो डिप्रिसिएशन एक्सपेंस काउंट होता चला जाएगा। नाउ टेल यू इंपॉर्टेंट पार्ट, ये किसी भी मेथड का कोई भी प्रॉब्लम आपको एग्जाम में नहीं आएगा, ये न्यूमेरिकल आपको सॉल्व नहीं करना है। लेकिन अगर आपको कभी आता है कि एनी मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन, तो आपको पता होना चाहिए। इनकेस अगर आता है तो यू मस्ट नो द थिंग्स। तो व्हाट यू हैव टू डू, ये वीडियो देखने के बाद यू हैव टू राइट डाउन ऑल दिस थिंग्स, यू हैव टू राइट डाउन दिस कंसेप्ट्स एंड यू हैव टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। दिस आर वेरी सिंपलर वंस। और जितना यहाँ पे बताया इट इज मोर देन सफिशिएंट, बस इतना ही आपको सॉल्व करना है। अगर प्रॉब्लम आता है कि एक्सप्लेन एनी डिप्रिसिएशन मेथड, तो आप कोई भी मेथड सिलेक्ट करो, उसका थ्योरेटिकल पार्ट लिखो। और अगर आप इस तरह का एक प्रॉब्लम लिख देते हो तो वो चाहे फिर 9 मार्क के लिए भी क्यों ना हो, यू विल गेट फुल मार्क्स फॉर इट। बट जनरली न्यूमेरिकल्स तो उसमें नहीं होते। इट वॉज नेवर एक्सपेक्टेड दैट यू शुड सॉल्व द न्यूमेरिकल, हाउएवर इफ यू सॉल्व द न्यूमेरिकल दैट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। उसके बाद में विल गो फॉर द नेक्स्ट मेथड। अब नेक्स्ट मेथड कौन सी है, डबल डिक्लाइनिंग मेथड। अब डबल डिक्लाइनिंग मेथड एज द नेम सजेस्ट इट काउंट्स एक्सपेंस ट्वाइस एज मच एज द बुक वैल्यू ऑफ द असेट एवरी ईयर। असेट की जितनी बुक वैल्यू है उससे डबल वो एक्सपेंस काउंट करते हैं। अब ये देखेंगे कि एग्जैक्टली कैसा है। दिस इज एन एक्सीलरेटेड डिप्रिसिएशन मेथड। इसमें ये क्या समझ के चल रहे हैं कि डिप्रिसिएशन बहुत फास्ट होते जा रहा है। मतलब आज जो 1,00,000 की चीज़ थी वो कल 90,000 की, ऐसा नहीं है। एक साल बाद 10% कंप्लीट किया, ऐसा नहीं है। आज जो 1,00,000 की थी कल वो 70,000 की होंगी, उसके बाद में वो सीधे हो जाएंगे, हो सकता है 50,000 की हो जाए, फिर 30,000 की हो जाए, या फिर 15,000 की। लाइकवाइज दे आर कैलकुलेटिंग एक्सीलरेटेड बहुत स्पीड से। अब ये एक्चुअली क्या होता है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल से भी मैच करता है। क्योंकि क्या होता कि जैसे एकदम सिस्टमेटिक, एकदम प्रॉपरली और एकदम यूनिफॉर्मली कोई चीज़ डिप्रिशिएट नहीं होती। जैसे आपके मोबाइल का लाइफ अगर 4 साल है तो आज आपने 20,000 का खरीदा, तो आप 1 साल और आप 4 साल बाद बेचोगे तो आपके इसके मिलने वाले 4,000 रुपये। तो आपको 4 साल में 16,000 चाहिए कि 16,000 रुपये आपको मैनेज करना है। तो इसका मतलब ये है क्या कि आपने अगर नेक्स्ट ईयर बेच दिया तो आपको सीधे 16,000 मिल जाएंगे। नॉट लाइक दिस। वो प्राइसेस डिप्रिशिएट बहुत फास्ट होता है। अच्छा ठीक है, चलो 1 साल बाद बेचा 16 मिलेंगे, उसके अगले साल बाद आप सोचोगे कि 12,000 मिलेंगे, नहीं, वो 12 नहीं हो, सीधे 6 पर ही आ जाती है वैल्यू। तो एक्चुअल जो डिप्रिसिएशन इस तरह का होता है। इसलिए जो डबल डिक्लाइनिंग मेथड है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। रेस्ट मेथड्स आर ऑल्सो यूज्ड बट दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट मेथड। नाउ द फॉर्मूला इज ट्वाइस इंटू स्ट्रेट लाइन विद। फॉर्मूला के बजाय हम डायरेक्टली प्रॉब्लम देखते हैं। देखो यहाँ दिया इन दिस प्रॉब्लम इट इज गिवन, यहाँ पे सीधा एक प्रॉब्लम दिया है। व्हाट इज दिस, ऑन अप्रैल 2012, अप्रैल 1 2012 कंपनी परचेज एन इक्विपमेंट फॉर 1 लाख। 1,00,000 में इक्विपमेंट खरीदा। यूजफुल लाइफ कितना है, 5 ईयर्स। सॉलेज वैल्यू कितनी है, 14,000। कितने में खरीदा, 1,00,000 में। यूजफुल लाइफ कितना है, 5 ईयर्स। सॉल्वेज वैल्यू कितनी है, 14,000। एंड डिप्रिशिएशन एक्सपेंस फॉर द नियरेस्ट होल मंथ, कैलकुलेट डिप्रिसिएशन फॉर दिस ईयर यूजिंग अ डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। अब 1,00,000 की चीज़ खरीदिए, उसको अगर बेच देंगे 5 साल के बाद तो 14,000 हमको मिल जाएंगे। तो उसका यूजफुल लाइफ हो गया 5 ईयर्स, सैलवेज वैल्यू होगी 14,000। नाउ विल सी द फॉर्मूला। डिप्रिसिएशन ट्वाइस इंटू स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएशन परसेंट इंटू बुक वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। बुक वैल्यू इज कॉस्ट ऑफ असेट माइनस एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। बुक वैल्यू मतलब कॉस्ट ऑफ असेट माइनस, जैसे 1,00,000 की थी और 15 डिप्रिसिएशन का निकाल लिया तो उसकी वैल्यू होगी 85,000। और डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करना, तो ये सिंपल फॉर्मूला है। यूजफुल लाइफ 5 ईयर्स, स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएशन, यूजफुल लाइफ 5 ईयर्स है तो कितना परसेंट डिप्रिसिएशन पर ईयर हो रहा है, 20%। स्ट्रेट लाइन के हिसाब से कैलकुलेट किया, डिप्रिसिएशन पर ईयर कितना हो रहा है, 20%। तो अब आप बोलोगे सर फिर स्ट्रेट लाइन में और इसमें डिफरेंस क्या है, देयर इज अ डिफरेंस। व्हाट दे डू, दे मल्टीप्लाइड। इसको सीधे 2 से मल्टीप्लाई कर लो कि पर ईयर के हिसाब से कैलकुलेट किया, लेकिन सीधे उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो हर साल 20% हो रहा और उसको डबल कर दिया, हो रहा 40%। इसलिए इसका नाम रखा डबल डिक्लाइनिंग मेथड। डबल डिक्लाइनिंग कि 40% से सीधे कम हो रहा 1 साल में, 40% से कम हो रहा 1 साल में। तो इन्होंने पहले डिप्रिसिएशन पर ईयर कितना आ रहा था, स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएशन परसेंट 1/5, क्योंकि 5 साल में पूरा होगा तो 1 साल में कितना होगा 20%।
तो 20% होगा तो उसका उन्होंने सीधे सीधे क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो डेप्रिसिएशन रेट कितना हो गया, 40% पर ईयर। तो यहाँ पे हमने सबसे पहली चीज़ कैलकुलेट की डेप्रिसिएशन रेट, और वो कितना आ गया, 40%। और वो कैसे कैलकुलेट किया, वो इस फॉर्मूले से कि 5 साल में अगर 100% हो रहा तो 1 साल में 20% का डबल कर दिया, तो ये होगी डबल डिक्लाइनिंग मेथड के हिसाब से 40% पर ईयर। अब ये 40% पर ईयर हमने क्या किया कि ये 40% तो पहले साल में कितना होगा, 1 लाख उसकी प्राइस है, तो 40% ऑफ 1 लाख, तो सीधे सीधे आया था 40% ऑफ 1 लाख मतलब 40,000 आ गया। लेकिन अब हमने क्या किया, उसको परचेस किया था हमने अप्रैल में, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ्स हो गए। और इन्होंने क्या बोला, एक आपने पढ़ा होगा यहाँ पर, दिस दे टेक इट एज अ होल मंथ। कंपनी एक्स डेप्रिशिएट्स एक्सपेंस फॉर द नियरेस्ट होल मंथ, नियरेस्ट होल मंथ कैलकुलेट द डेप्रिशिएशन। मतलब वो क्या बोलती कि ठीक है आपका अप्रैल से आना तो आप वो छोड़ दो, और आप उसके बाद में कितने आ रहे, तो नेक्स्ट अप्रैल तक जैसे जनवरी फरवरी मार्च ये 3 चले गए, तो आप क्या करो, इसको जो रेस्ट जो ईयर है, अब यहाँ पर हम फाइनेंशियल ईयर की बात नहीं कर रहे, क्योंकि बैलेंस शीट तो आप कभी भी बना सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट रहता था तो यू गो फॉर मार्च टू अप्रैल और 1 अप्रैल टू 31 मार्च, दैट इज ए डिफरेंट पार्ट, बट हियर यू आर प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट। सो उस साल की बात है, तो उस साल में 3 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं, तो 1 लाख में से 1 साल में उसका वैल्यू 40,000 कम होना था, तो कितने की होना चाहिए थी, वो सिर्फ वो 60,000। लेकिन हमारे पास क्या था कि 40% ऑफ 1 लाख मतलब 40,000 उसका डेप्रिसिएशन अमाउंट होना था, लेकिन वो 40,000 हो रहा था 12 महीने के लिए, मतलब 1 साल के लिए, बट आपके पास अभी सिर्फ 9 मंथ्स है, तो वो कितना होगा, 3/4 ऑफ 40,000, 3/4। समझ में आ रहा ना कि 40% ऑफ 1 लाख इज 40,000, बट उसका हमने लिया मल्टीप्लाइड बाय 9/12। अब ये 9/12 क्या है कि वो महीने 12 महीने में से हमारे पास सिर्फ 9 महीने का हमको कैलकुलेट करना है, क्योंकि वो साल में सिर्फ 9 महीने वो मशीन है, क्योंकि वो हमने 3 महीने लेट ली है ऑलरेडी। मतलब जो हमने 3 महीने लेट लिया तो उतना उसका डेप्रिसिएशन कम होगा 3 महीने से, तो इसलिए हमको 9/12 से डिवाइड करके ये वैल्यू कैलकुलेट करी, तो इट कम्स आउट टू बी 30,000। तो पहले साल उसका डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 30,000, मतलब 1 लाख की मशीन थी, 1 साल के बाद में कितनी होगी, 30,000 की। अब अगले साल फिर क्या करेंगे, 1 लाख में से 30,000 माइनस कर दिया तो 70,000 उसकी वैल्यू है। अब वो 70,000 का हम 40% निकालेंगे, वो 70,000 का 40% तो हुआ था 28,000, उसको हमने 12/12 से ही मल्टीप्लाई किया, मतलब उसमें हमने 3/4 तो नहीं किया, क्यों, क्योंकि वो पूरे 1 साल की बात कर रहे हैं हम। पहले साल क्या था, हमने 3 महीने लेट लिया था, इसलिए 3 महीने लेट कैलकुलेट किया था, ये हम बात कर रहे हैं पूरे 1 साल की, तो ये कितना आ जाएगा 28,000। अब फिर हमने क्या किया, नेक्स्ट में उसकी वैल्यू कितनी होगी, 30 माइनस 30 प्लस 28 58, तो 1 लाख में से हम 58,000 माइनस कर देंगे, तो जो भी आएगा 42,000, उसका फिर से हम 40% निकालेंगे, तो उसका 40% ये इतना आ गया। और ये हम कब तक चलते रहेंगे, जब तक जो साल्वेज वैल्यू 14,000 के नीचे अगर आपकी डिप्रिसिएशन की चीज़ जाती है, कॉस्ट जाती है मशीन की, यानी आप जब भी बेचोगे तो आपको 14,000 मिलना चाहिए। लेकिन एक स्टेज ऐसे आएंगी कि उस टाइम पे अगर आप ये हिसाब से कैलकुलेट करते चले जाओ तो उसको सेल करने के बाद को आपको 14,000 से कम रुपए मिल रहे, तो तब आप डिप्रिसिएशन निकालना बंद कर दोगे, उसके बाद वो मशीन की लाइफ खत्म होगी, यू हैव टू डायरेक्टली सेल इट। तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं इन दिस टेबल, यू विल इजीली अंडरस्टैंड। ईयर 2012 में 1 लाख उसकी वैल्यू थी, उसका 40% हमको कम करना था, तो वो आ रहा था 40,000, तो उसकी वैल्यू होना चाहिए थी 60,000, लेकिन हमने 3 महीने लेट लिया था, तो उस साल उसका डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना है, सिर्फ 30,000, उसका डेप्रिसिएशन अमाउंट है 30,000, तो एट द एंड ऑफ ईयर कितना बचता है अपने पास, उसकी वैल्यू कितनी बची, 70,000। अब 2013 में उसकी वैल्यू कितनी, 70,000, तो उसका 48% सीधा सीधा आ गया 28,000, तो 70,000 में से 28,000 के तो बची कितनी होगी उसकी वैल्यू, 42,000। अगले साल में फिर से 42,000 का 40% निकाला, सो इट कम्स आउट टू बी 16,800, तो 42,000 में से 16,800 चले गए, तो उसकी वैल्यू कितनी बची, 25,200। मतलब एट 2012, 13, 14, तो 2014 में उसकी वैल्यू कितनी है कि 25,200। अब इसका 40% निकाला तो इट कम्स आउट टू बी 10,080, फिर वो उसमें से हमने माइनस कर दिया, तो मशीन की कीमत होगी 15,120। अब 15,120 का 40% निकलेंगे तो इट कम्स आउट टू बी ए बिग वैल्यू, एक बहुत बड़ी वैल्यू आएंगी, और उसको माइनस करोगे, सपोज इसका 40% निकाल देते, इट कम्स आउट टू बी 6,000 समथिंग, तो 15,000 माइनस 6,000 इट कम्स टू बी 7,000-8,000। लेकिन हमको पता है कि हमको 14,000 उसको बेचने के बाद मिलेंगे, तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसका डेप्रिसिएशन निकालना बंद करते हैं। हम क्या बोलेंगे, 15,000 में से 14,000 माइनस कर दो, तो 1,120 उसका डेप्रिसिएशन निकाल लो अमाउंट, और फिर मशीन को बेच देंगे।
नहीं तो फिर अगर आप फिर से डिप्रिशिएशन करने चले जाओगे, क्योंकि इसका यूजफुल लाइफ भी खत्म हो गया, 1 2 3 4 5, 5 साल में उसका यूजफुल लाइफ भी खत्म हो गया। उसके बाद में हमको उसको सेल करना है। तो हियर यू कैन सी depreciation of 16 is 15,120 minus 14,000, that is rupees 1120। और ये 1120 ये है, ये हमने कहाँ से निकाला, ताकि हमको 14,000 यहाँ पर बचना चाहिए। अगर आपको 14,000 से कम आता है इधर वैल्यू, कि मशीन की वैल्यू अगर 14,000 से कम होती चली जा रही, तो आप उसको फालतू यूज़ कर रहे हो, बिकॉज यू आर डेडिकेटेड टू गेट। आपको वो मिलना ही था, कितना मिलना था, 14,000 उसकी साल्वेज वैल्यू, लेकिन वो यहाँ पर नहीं मिली, तो इसलिए यू हैव टू स्टॉप हियर। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस 3 मेथड्स। नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डेप्रिसिएशन। इसके आप बेनिफिट देख सकते हैं। इट हेल्प्स कंपनीज टू एक्यूरेटली स्टेट इनकर्ड एक्सपेंसेस। अब असेट्स का कंपैरिजन, उसके बाद में ऐसा होता है कि आपको फाइनेंशियल एकदम प्रॉपरली इंफॉर्मेशन मिलती है। इट हेल्प्स बिजनेस रिपोर्ट्स करेक्ट नेट वैल्यू, और वी ऑलरेडी नो कि नेट वैल्यू का असर कितना पड़ता। अगर आप ओरिजिनल परचेस कॉस्ट इंक्लूड करोगे असेट की, तो योर बिजनेस विल बी इन लॉस, या फिर आपको उसकी लायबिलिटीज ज़्यादा आएंगी। सिंस assets experience wear and tear from daily life, the actual value declines over time. Companies can find assets net book value सब्सट्रैक्टिंग ओवरऑल असेट्स, मतलब उस दिन पर्टिकुलर वैल्यू कितनी है वो उसका और एक बेनिफिट है। सो दीज आर द डिफरेंट बेनिफिट्स। इट अलाउज कंपनीज टू रिकवर द कॉस्ट व्हेन इट इज परचेस्ड। इट अलाउज कंपनीज टू कवर टोटल कॉस्ट इन लाइफ स्पैन इंस्टेड ऑफ इमीडिएटली रिकवरिंग। इट अलाउज कंपनी टू रिप्लेस फ्यूचर एसेट्स। देयर आर टैक्स रूल दैट मेक डेप्रिसिएशन टैक्स डिडक्टेबल। तो कुछ ऐसे टैक्स है जो आपको भरना पड़ता, तो इसके लिए भी आपको डेप्रिसिएशन दिखाना पड़ता है ना, बोलना पड़ता है नहीं सर इस साल मैंने इतना ही यूज़ किया ये चीज़, तो आप मुझे इतना टैक्स नहीं लगा सकते हो। A greater depreciation expense lowers taxable income and increases tax saving। अगर depreciation expense आप ज़्यादा बताते हो तो फिर उससे आपको बेनिफिट होते हैं। सो these are the so many things, these are the different benefits of depreciation। So this is all about that particular thing, depreciation। In the next lecture we will see something else, probably the problem on profit and balance sheet। So till then we'll stop here. Till then, thank you class, good day।